मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन जितने क्वेश्चंस पूछेंगे वो सब. हाय, आई एम चिंतन मिश्रा. सर, गुड इवनिंग. Sir, it is an e-talk show. It's not a Zoom call. Welcome to Wise Exchange, India's first e-talk show, where we invite the best real estate icons to come amongst us for a one-on-one conversation. We try to understand from them what it was, what it is, and what it will be for the Indian real estate industry. Come join us for a live conversation and let's hear it from the horse's mouth. Hi, I'm Chintan Desai. Good morning to everyone who have joined us today. I'm Chintan Vasani, your host for the day. Welcome to Wise Exchange, powered by WiseBiz Realty. WiseBiz Realty is a real estate market research, strategic planning, and a closure management company. Wise Exchange is an initiative by us to connect the person behind the success, the person behind the brand. Today, we have a mixed audience of real estate developers, architects, bankers, engineers, channel partners, and everyone who loves and follows real estate. Our today's guest for episode 4 of Wise Exchange is a real estate developer respected for designing practical buildings and architectural marvels. He has over 50 years of excellence in real estate industry, and his company, the Vadva Group, is currently developing residential, commercial, and township projects spread across approximately 4.5 crore square feet, developed, ongoing, and future. Our guest for today is Mr. Vijay Vadva. And before I invite him, we have a small surprise for him. I have invited our family friends, Dr. Save and his beautiful family. Mrs. Rupali Save is pursuing MA in psychology. She's a mother, wife, and a plant lover. They have around 200 pots in their beautiful home. She helps Dr. Save, a renowned psychiatrist, with administration and logistics of clinic and their hospitals. She will be joined by Ved Save, a 16-year-old music lover who has recently won a silver medal in Homi Baba Young Scientist exam and can solve the Rubik's Cube in 32 seconds. They are very close friends of mine. And sir, this is a small surprise for you before I get you online. Thank you, Chintan, for this generous introduction. Today, me and my son are very excited to be a part of this episode of Wise Exchange with Mr. Vijay Vadva, especially because we happen to be living in this beautiful building and home made by the Vadva Group. So, sir, it's a pleasure to have you, and thank you so much for touching our lives. As a token of gratitude, my son Ved Save would like to play a small piece of music for you on his piano. So here we go, Ved. Thank you for having us over, and I would really like to know your story. Thank you. I've still not got Mr. Vadva to join. There is one more surprise before I go online, and this was insisted by one of my very dear friends that he wanted to come before Vadva sir comes. Last surprise, and then I'll get Mr. Vadva. Hello, Mr. Vadwa. This is James here. Wow, it's been so long since I saw you. I hope you are so very well. What a world that we live in now since we last met. Everything seems to have changed so much. But nothing changes in terms of our feelings and our friendship. I still remember back in the day when I was first invited to India by you, and for that I'm always grateful. I've seen and learned so much from you. You have taught me about humility, about the integrity and values of architecture. You instilled in me a kind of intricate sensibility towards the needs of people,
over and above fancy architecture. I think my work has come a long way since I have learned from you and when I have come and experienced India. There is so much more to architecture than just about the iconic. It is always about people. And I think together we explored many things in the projects that we did together that really touches on the lives of people, whether working or living in your buildings. On that note, I also want to wish everyone at the Wadhwa family health and safety. You've all been an important part of my career and life there. Mr. Wadhwa, you and your family are important to me, and I'm always very, very grateful. And I very much hope that I'll be able to come and visit you and say hello in person soon. So enjoy your interview today. Please continue to spread your wisdom and your experience. I'm sure the audience would have enjoyed your talk as much as I have always listened to your talks when you shared them with me. Thank you. God bless. Hello, James. Sir, that was a small surprise for you. That was actually shot by James at his. He shot it in the night and he sent it at around 2 a.m. in India time. And then my team tried to get it together. We have with you Vijay V. Wadhwa, sir. Sir, welcome to Wise Exchange. Thank you, Chintan. Thank you, James. Thank you, with family from Club Aquaria. Nice to see all of you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, as I told you, this particular e-talk show is to know the person behind the brand, is to know the person who is running the whole show, and we would want to know अंदर की बातें. So we have divided this entire talk show into 3 parts. It will be what it was, what it is, the current situation, and what it may be. We'll directly start with, sir, what it was. Sir, when you started your career in real estate, did you always wanted to get into real estate, or उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानना चाहेंगे, sir? In 1969, when I was schooling, I was 17 years of age. My daddy developed with a liver cirrhosis. Doctors had advised him that he has to go for major treatment. कुछ मैं उस वक्त एसएससी में था, बैंड्रा में पढ़ता था. I had no option और मेरे को पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था. I joined my father when I was 17 years. बड़ा इंटरेस्टिंग फेज, ग्राउंड एंड 2 फ्लोर की बिल्डिंगें बनाना. उस वक्त हम 25 रुपये में बेचते थे. अंधेरी में इंडस्ट्रियल एस्टेट 17 रुपये में बेचा था और बैंड्रा माउंट मैरी पे 49 रुपीज़ में बेचा था. वी आर वेरी हैप्पी. खुद काम करना, खुद म्यूनसिपैलिटी में जाना, खुद मटेरियल परचेज करना, खुद बिल चेक करना, खुद सुपरवाइज करना. उस वक्त 49 रुपीज़ में जब बेचा, उस वक्त भी 7 रुपया फुट का कमाते थे. बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा मज़ा आता था कि ये बिल्डिंग में हमने 3 लाख रुपया कमाया, 4 लाख रुपया कमाया. उस वक्त बड़ी वैल्यू थी. जैसे टाइम पास होता गया, ग्राउंड एंड 2 के बदले ग्राउंड एंड 7, एंड फिर तो एक फेज ऐसा आया खार बांद्रा में, because of our Sindhi community relations and other things. Lot of deals. Every road in Khar used to have a project. और उस वक्त की रियल वर्किंग थी, ग्राउंड कनेक्टेड. मेरे को तब से आदत है, आज भी मैं डायरी कैरी करता हूँ. साइट पे जाओ, क्या लेना है लिया, खुद परचेज किया. कि जो इल्यूजन में आदमी बाद में आ गया ना, वो भटक गया. अपनी ताकत पे काम करने का, ओवर ट्रेड नहीं करने का. दे वर वेरी गुड डेज एंड दोज डेज रियली टॉट अस. यू नो, आजकल जो यंग जनरेशन रेडीमेड कुर्सी पे आ जाती है,
कि बड़े बाप का बेटा अमेरिका से पढ़ के आ गया और एमडी की चेयर पे बैठ गया। नो, अभी यहाँ पे अलग अलग ब्रीड के बच्चे हैं जो सुन रहे हैं, आर्किटेक्ट्स हैं। रियल एस्टेट बड़ा इंटरेस्टिंग काम है अगर शौक से करो तो। खाली एक्सेल शीट के लिए काम मत करो बेटे, काम दिल से करो, मेहनत करो। यूज इंजीनियर्स एज योर असिस्टेंट्स, डोंट यूज योर इंजीनियर एज अ प्रोजेक्ट ड्राइवर्स। उनका आपको वापस रिपोर्टिंग सिस्टम, समझाने का सिस्टम विल बी अकॉर्डिंग टू हिज कॉमन सेंस एंड हिज इल्यूजन, वेयर द कम्युनिकेशन गैप स्टार्ट्स। इफ यू आर नॉट इन टच with the ground, real estate can't work. You have to be, आपके जूते चिकड़ में जाने चाहिए, सीमेंट में जाने चाहिए। हमको तो वो दिन याद आते हैं जब कंक्रीट होता था, हम कंक्रीट को भी खांचते थे। उस वक्त वाइब्रेटर नहीं होते थे, हम सलिए से खांचते थे, बाम्बू से खांचते थे। नाइस डेज। बट चिंतन वो बड़े स्ट्रगलिंग की फेज थी, बट उसने हमको बहुत सिखाया, प्रैक्टिकल सिखाया, नेगोशिएशन का आर्ट सिखाया। और उस वक्त एक्सेल शीट नहीं होती थी, अपना खुद का जजमेंट और प्रैक्टिकल कनेक्शन। एक ही सर्वर से अगर सब इंस्ट्रक्शन जावे तो इट बिकम्स अ बेटर प्रोडक्ट। आजकल के जो बच्चे हैं, आर्किटेक्ट अलग, प्रोजेक्ट मैनेजर अलग, अकाउंट्स अलग, ये अलग, हर आदमी अपने डायरेक्शन में सोचता है, अपने सेलो में सोचता है। दैट वे रियल एस्टेट डजंट वर्क। पीपल हैव फेल्ड बिकॉज दे हैव डिपेंडेंट too much on various segments. They may be having good people, but that good HOD is not thinking overall. When the project is being conceived, the project designer has to think from designing point of view, from MEP point of view, various things. जैसे ये 50 साल की जर्नी has taught us so many things, especially me. आज भी मैं सीख रहा हूँ। जब तक बिल्डिंग क्लाइंट सेंट्रिक नहीं बनेगी, हम ना आर्किटेक्ट के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं ना अपने लिए बना रहे हैं। हम क्लाइंट, एक इनविजिबल क्लाइंट है, उसके लिए बना रहे हैं। उस इनविजिबल शख्स को क्या चाहिए? जितने लोग ये बात सोच रहे हैं, हम सबकी फिलॉसफी सेम है, वेदर स्लम में रहता है या मिड हाउसिंग में या लग्जरी हाउसिंग में। हमने उस चीज़ को गांठ बांध ली है, हाइट, लाइट और एयर। ये हमारी आज 50 साल से डिज़ाइन फिलॉसफी है। भगवान के दया से आज कोविड में तो इसको मैक्सिमम डिमांड मिल रही है। हमारे जितने यंग आर्किटेक्ट्स और डेवलपर्स ये सुनना चाह रहे हैं, प्लानिंग इज़ द कोर कॉम्पिटेंसी। अगर आपका प्लान प्रैक्टिकल बनेगा, आपका माल बिकेगा, देर दुरुस्त बिकेगा। और जो फंड वाले हैं, अगर प्रोजेक्ट अच्छा प्लान्ड होगा, आपको एग्जिट अर्ली या लेटर डेट पे मिल ही जाएगा। एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए, बट एग्जीक्यूशन में अगर आदमी थोड़ी गलती करता है, वो रिपेयरेबल है। अब आपके चिंतन, आपके घर में अगर किसी ने थोड़ा गलत मार्बल लगा दिया, आप 2-4 दफ़ा बिल्डर को फ़ोन करोगे, चेंज कर दोगे। बट अगर डिज़ाइन बिल्डिंग का गलत बना तो कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन मतलब इट इज़ लाइक आपने गलत डायग्नोज ही गलत किया प्रोजेक्ट का। वो तो बड़े अच्छे दिन थे, हार्ड वर्क था। आज दिन अलग हैं, पर आज का टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो गई है। तो टेक्नोलॉजी इज़ हेल्पिंग अस टुडे, बट बेसिक रूट से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। Perfect. Sir, Advocate Deepak Thakkar, my mentor and also one of my partners in WiseBiz, he had a question for me, which he said कि ये सर को पक्का पूछना कि what is the reason for Vadhva Group to only concentrate in Mumbai
Is there a conscious effort made by you guys to only focus, और आपका कोई और नजरिया था इस चीज पर? सब क्या है, ये जो इंसान में ग्रीड होती है ना, ग्रीड में प्रोजेक्ट्स ले लेता है और क्लाइंट को डिलीवरी टाइम पे कर नहीं सकता है, सेटिस्फाई कर नहीं सकता है। हमारे हिंदुस्तान में इतने स्टेट्स हैं, मैं देखता हूँ बॉम्बे का रूल और पूना के रूल में डिफरेंस है। वी कांट रीच एवरीवेयर, वी कांट गिव क्वालिटी एवरीवेयर, और जिन जिन लोगों ने ये किया, बेसिकली दे हैड टू क्लोज डाउन द शॉप। पारसनाथ जी देख लीजिए, DLF देख लीजिए, जो लोग पैन इंडिया या फैलाने की कोशिश की। मैं बोलता हूँ एक पूना वाले को भी पंचशील बहुत कोशिश कर रहे हैं बॉम्बे में आने की। ही इज़ मास्टर, ही इज़ नंबर 1 इन प्लानिंग, ही इज़ 1 इन एग्जीक्यूशन, ही इज़ मास्टर इन हिज जॉब इन पूना, बट बॉम्बे में आना इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ बॉम्बे आर डिफिकल्ट। बेंगलोर वाले बहुत बॉम्बे आना चाह रहे हैं, दे आर पेपर पे आते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, पर जब स्टडी करते हैं दे फील कि हम नहीं काम कर सकेंगे, क्योंकि हर जगह का काम करने का तरीका अपना अपना है। सो वी थॉट इट्स बेटर, रेपुटेशन को बना के रखो, जहाँ पहुँच सको, डिलीवर कर सको, क्वालिटी दे सको, वहीं काम करो। तो आई थिंक आपके ठक्कर साहब का जवाब उनको ठीक मिला कि उनको कुछ और हो तो मेरे को मेल कर दें, आई विल सेट। Sure. And sir, one last question in this part, what it was, one incident which you can recollect from that side, which has helped Vadhva Group to reach this height. I know there would be many incidents, but one incident which you can share with us. मतलब ऐसे तो ख्याल में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग, हमारे डैडी का एक नेचर था, जिस दिन प्रोजेक्ट चालू करते थे ना, उस दिन बोर्ड पे लिख देते थे पोजेशन मार्च 1973। वो जो लक्ष्य होता है ना पोजीशन का, उस वक्त ना रेरा था ना कुछ था, कमिटमेंट विद द क्लाइंट। हमने कभी कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी हमसे, बट कभी इंटेंशनली किसी को चीट नहीं किया। कभी प्रोजेक्ट महीना 2 महीना डिले हो गया, पर क्या आज तक 50 साल में भगवान की दया से ऑल प्रोजेक्ट्स हैव बीन डिलीवर्ड। कभी गवर्नमेंट के परमिशन के हिसाब से डेट दुरुस्त हो सकता है, बट इंटेंशनली हमने किसी क्लाइंट को, कोई बोले कि इनने फ्लैट बेच के हमको 20 साल पहले डिलीवरी नहीं दी, नॉट अ सिंगल क्लाइंट। आदमी एक दफ़ा फ्लैट बेचने के बाद समझता है ये अभी कहाँ जाएगा, नो फॉर अस। कभी प्रोजेक्ट अटका भी तो उस वक्त भी स्वैप देम इन सम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स सो दैट ही शुड बी सेटिस्फाइड एट द एंड ऑफ द डे। Right. We have tried to take as much questions that we want in this particular segment. Now we'll quickly go to, sir, the segment which is the current scenario, the pandemic, the way real estate, the scenario is going on. इस पे सर आपके हमको views चाहिए रहेंगे। What do you think about the current scenario, sir? न चिंतन, आप एक सेगमेंट भूल गए, एक सेगमेंट आप भूल गए। What it is today is a different issue. बट हम सब बिगड़े कैसे, हम सब बिगड़े कैसे? आदमी बिगड़ता ही तेजी में है, नशा है। वो समझता है कि मैं तुर्रम खान हूँ, मैं जिस चीज़ को हाथ लगाता हूँ सक्सेस मिलती है। सक्सेस उसको नहीं मिल रही थी, उसको हवा ऊपर ले जा रही थी। ये जो बीच का, आपने जो पहले क्वेश्चन किया मेरे इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ का, ये जो आज से 12 साल 15 साल का जो फेज था, जो तेज़ी उड़ी, लैंड प्राइसेस बढ़ते गए, बिल्डर ने सोचा मैं पैसा कमा रहा हूँ। कई ब्रोकर्स, जिनको हम ब्रोकर्स बोलते हैं, आज उन लोग को चैनल पार्टनर बोला जाता है, ठीक है, सबको मान से बोलना चाहिए, चैनल पार्टनर बोलो, वो जुड़े। मतलब एवरीबडी स्टार्टेड वर्किंग इन अ इल्यूजनरी वे। जो बीच का फेज आ गया था नशे का, बिल्डर ने अपनी कैपेबिलिटी देखी नहीं कि मैं जो बना रहा हूँ, क्या मैं अच्छा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इज़ माई एंड यूज़र नीडिंग दैट, कि मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। बिल्डर को आर्किटेक्ट्स ने, देयर आर मेनी आर्किटेक्ट्स वाचिंग दिस, डिड आर्किटेक्ट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन डिटेलिंग, डिड दे कॉन्सेंट्रेट ऑन प्लानिंग, और they only concentrated more footage, more fees, elevation?
ये जो सब मिसमैच हुआ ना और तेज़ी होती गई, हमारे चैनल पार्टनर्स को भी दलालियाँ मिलती गईं और इन्वेस्टर्स ने भी कमाया। उसके बाद में एक ऐसा फेज़ आया जो कि आज 5 साल से चल रहा था, पैंडेमिक से पहले, कि लोग चौक होते गए। ये जो हवा का फेज़ था, मैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से बात करता था कि यार ये बिल्डर के प्रोजेक्ट में दम नहीं है, इसको ये एनबीएफसी पैसा दे कैसे रही है। कहते हैं सर वो प्रोजेक्ट की बैलेंस शीट नहीं देख रही है, वो खाली देखती है ये बिल्डर टोपी फिरा देगा। एट द एंड ऑफ द 3 इयर्स से पहले आरबीआई के रूल के हिसाब से किसी न किसी को टोपी फिरा के मेरे को एग्जिट दे देगा। मैंने कहा ये कब तक चलेगा? फिर देन वी सेड ये म्यूजिकल चेयर है, म्यूजिकल चेयर जब तक चलेगी तब तक ये चलेगा। और जिस दिन ये एनबीएफसी के क्राइसिस चालू हुए, ये म्यूजिकल चेयर बंद हो गई। देन ऑल एनबीएफसी स्टार्टेड गेटिंग चोकिंग अप। दे डिडंट रियलाइज कि ऐसा दिन भी आ सकता है। दे थॉट कि हम हमेशा बैंकों के पास जाएंगे, 60% पे पैसा ले लेंगे, 20% पे देंगे। दे वर शोइंग देयर बैलेंस शीट, दे वर नॉट सीइंग कि ये बिल्डिंग की प्लान्स पास हैं, अप्रूवल है, कि एक्सेल शीट पे इस बिल्डर ने प्रोजेक्ट दिखाया है। ये बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? इज ही अ पीआर मैन और इज ही अ रियल वर्कर? इज ही रियली मेकिंग बिल्डिंग्स और मेकिंग प्रेजेंटेशंस? एनबीएफसीज भी वो नशे में आ गई। दे वेंट विद वैल्यूएशन गेम। और जब ये म्यूजिकल चेयर बंद हो गई ना, बैंकों ने एनबीएफसी को बंद किया, ओ हो, उसके बाद सबकी नींद हराम हुई। तो फिर वो बोलने लगे कि बिल्डर चोर है। अरे भाई वो बिल्डर की कैपेसिटी नहीं थी यार, तुमने दिया क्यों उसको पैसा? आप पैसा किसी नॉन परफॉर्मर को दे रहे हो और उसको ब्लेम कर रहे हो। बेसिकली आपका अप्रेजल रॉन्ग था, आपने रॉन्ग परफॉर्मर को पैसा दिया। उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, उसका कैरेक्टर देखो। ये जब से ये चीज़ होनी चालू हुई और पैसा आना बंद हुआ एनबीएफसीज को, एनबीएफसीज ने कंस्ट्रक्शन में फंडिंग करना बंद किया, ऑल्दो दे हैड मॉर्गेज द फुल प्रॉपर्टी। वहाँ पे कई होम लोन्स थे, प्रोजेक्ट बिल्डर के रुकते गए। देन ऑल दीज बैंक्स गॉट अलर्ट कि भाई हमने तो होम लोन दे दिया है और ये काम चल नहीं रहा है। डिड द बैंक रियलाइज कि अगर एनबीएफसी कंस्ट्रक्शन फंड नहीं देगी तो आगे जाके काम कैसे होगा? विच दे आर फेलिंग टुडे कि काम बंद हो गया है। एनबीएफसीज आर वेरी टाइट, दे देमसेल्व्स डोंट नो। जो मैच्योर्ड एनबीएफसीज हैं, बिलीव यू मी, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, न तो मैं किसी का नाम लूंगा, न अपने प्रोजेक्ट्स का नाम लूंगा, बिकॉज अगेंस्ट द एथिक ऑफ दिस फोरम। People are wanting to understand my thought process. I am not going to market any of my thoughts. NBFCs today don't know how to come out. It is my suggestion, advice. Earlier they come out, earlier they have haircut. Otherwise they will have to do mundan. आप अगर हेयरकट लेके अगर आज अपने आप को सेफ नहीं करोगे, प्लीज़ इल्यूजन में एनबीएफसीज नहीं रहें। मैं देख रहा हूँ पेपर्स में कुछ दिनों से टॉपिक्स आ रहे हैं, एक एनबीएफसी ने इतना कट लेके किसी को दिया। नाइस, करो। आज कम से कम प्रोजेक्ट मस्ट गो ऑन। ये बिल्डिंगें जो लास्ट 10 साल में इल्यूजन में बनी, खाली ग्रीड ऑफ एफएसआई के लिए बनी। सबको लग रहा था कि हम अपने बच्चों को एफएसआई का वसीयत दे के चले जाओ। दैट वॉज द वर्स्ट थिंग। 50 माले के टावर, 60 माले के टावर। दे डोंट नो वेदर 7 माले का बनाने में कितने साल लगेंगे, वेदर हम प्लानिंग अच्छी कर रहे हैं, वेदर वो माल बिकेगा, वेदर वो कॉस्ट में बिल्डिंग बनेगी, वेदर हमारे बच्चों को और हमको एग्जिट मिलेगा। बैंकों ने फंड दे दिया, बिल्डरों ने टीडीआर के या एफएसआई के ग्रुप गूफअप में, म्यूनसिपैलिटी भी एफएसआई बेच के अपने बैंक बैलेंसेस बढ़ाने लगी। आज म्यूनसिपैलिटी को प्रीमियम नहीं मिलते हैं तो वो बोलते हैं हम सैलरी नहीं दे सकते हैं। अरे भाई, you all should teach your executives to run the organization like a private setup. अगर आपको पगारें चुकानी है, you have to take out ways and means how to do more business.
आज हम जब तकलीफ में होते हैं, हम डे एंड नाइट सोचते हैं ये तकलीफ से हम कैसे निकलें, हाउ शुड वी कम आउट, वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू सेव कॉस्ट, वी हैव टू सेव ओवरहेड्स। हमने ये लास्ट 3 महीने में लोगों को बुलाया, भैया सैलरी कम करो, ये सब ने एग्री किया, एंड ओवरबोर्ड एवरी बिल्डर, एवरीबडी हैज एक्सेप्टेड इट नाउ। बट म्युनिसिपैलिटी एंड गवर्नमेंट बॉडीज ऑल्सो विल हैव टू थिंक कि अगर रेवेन्यू नहीं आएगा, उनको खाली रेवेन्यू चाहिए। अरे रेवेन्यू अपने स्टाफ को बोलो, यू ऑल आर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, कमिश्नर्स, यू ऑल हैव टू बी रन इट लाइक अ कॉर्पोरेट बॉडी, you have to run as a business, you have to generate revenue for the corporation cannot say कि मेरे को खाली टैक्सेस बढ़ानी है, रेडी रखना, रेट बढ़ाना है, मंदी है, माल नहीं बिक रहा है। See, we all have to be practical, we have to change our thought process। मेरी रिक्वेस्ट है दलालों को, प्लीज बिल्डर को सक मत करो, 4-4 टका दलाली। अरे भाई उस प्रोजेक्ट में दम नहीं है, वो नहीं दे सकता है, वो आपको मजबूरी से कमिट कर रहा है, पर वो एंड कैसे लाएगा। आज जिन ब्रोकरों ने 4-4, 5-5 टका, मैंने एक बड़े ब्रोकर का नाम नहीं लेता हूँ, उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 10% नाउ बैलेंस 90% पोजेशन, और उसमें कम से कम 10 टका जो आया उसका उसने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करा लिया, और वो 4 टका दलाली लेके हट के आज प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है। अब आप बताओ, विल द क्लाइंट्स नॉट गेट इफेक्टेड बाय दैट, विल द क्लाइंट्स नॉट टेलीफोन ब्रोकर्स कि तुमने हमको कहाँ फंसा दिया। भाई ब्रोकर कम्युनिटी, चैनल पार्टनर कम्युनिटी, जो बिल्डर आपको फ्री बेबीज दे रहा था, 100 फ्लैट बेचो, 20 फ्लैट बेचो, मैं मर्सिडीज दूंगा, अरे वो लोभी को ठोगी फंसाते हैं। भाई साहब मेहरबानी करो, आप लोग लालच में मत आओ। आप लोगों ने अपनी रेपुटेशन को दाव पे लगाया, दलाली के चक्कर में 4 टका दलाली ले ली, और अभी आप उसको बोलते हो परफॉर्म करो। कहाँ से परफॉर्म करेगा, उसके पास पैसा ही नहीं है। और क्लाइंट बोलता है कि मैं फंस गया। अरे भाई तुम सस्ते बिल्डर के चक्कर में फंसे क्यों? तुमने चेक नहीं किया उस बिल्डर की कैपेबिलिटी कि वो परफॉर्मर है कि नहीं है, कि खाली वो ब्रोशर बनाता है, आपको स्विमिंग पूल्स दिखाता है और शोबाजी करता है। You all should go for God's sake, my request to all who are listening, we all have to be practical, don't be in illusion, illusionary time is over। सबको क्या हो रहा था, सब बिजनेस ला रहे थे, इंसेंटिव्स मिल रहा था, एनबीएफसी भी बिजनेस ला रहे थे, उनको परसेंटेज मिल रहे थे, पर आज वो सब कॉर्नर्ड हैं। आज निकलना भी आपको ही है, आपको कोई और आके बेल आउट नहीं करेगा। योर डिसीजन, योर थॉट, प्लीज टेक अ कट एंड गो अहेड, प्रोजेक्ट्स मस्ट बी कंप्लीटेड, नहीं तो ग्राहक इज इफेक्टेड। आज जो बैंक्स हैं, जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, they should think कि we should come out with home loans in a very different structure। हमारे को एसबीआई का होम लोन का जो गारंटी स्कीम थी वो बेस्ट लगी। एसबीआई पूरी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करावे, टाइटल डीड्स अपने पास लेवे, सेम एचडीएफसी को करना चाहिए सर, सेम आईसीआईसीआई को करना चाहिए। एक ही बिल्डिंग में अगर 25 होम लोन दे रहे हैं, इंडिया बुल, डीएचएफएल, ये वो, आज सब बेल में शेल में चले गए, काम बंद हो गया, किसका पैसा अटका। आज अगर टाइटल डीड सब बैंक्स के पास होगा, और अगर बिल्डर परफॉर्म नहीं कर सकता है, बैंक्स कैन इंटरवीन एंड देन कम टू पीपल लाइक अस कि भाई मेहरबानी करो बिल्डिंगें पूरी करके दो उनको। सी अल्टीमेटली अवर क्लाइंट इज सुप्रीम। अगर हमारा ग्राहक सेटिस्फाइड नहीं है, उसको हम पीस ऑफ माइंड नहीं दे रहे हैं, तो वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू अवर प्रोफेशन। सो दे हैव टू चेंज दैट थॉट प्रोसेस। आई थिंक ये इल्यूजनरी लाइफ जो सबको है, ये लास्ट 1 बरस ने सबको सिखा दिया है। अभी भी किसी को नशा है तो प्लीज नशा उतार लो, नशा उतार लो, प्रैक्टिकल बनो, मेहनत करो और राइट धंधा करो। दैट इज माय थॉट फॉर 1 ईयर बिफोर। अब पेंडेमिक के बाद इज अ डिफरेंट स्टोरी, हाउ टू कम आउट ऑफ इट। योर क्वेश्चन वाज how it may be, but sir इसमें और एक आपको एक there are a lot of future home buyers who are watching this particular episode। we did a market research during the pandemic time, और तभी उनका ये बोलना था कि जो इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड्स, बहुत लोगों ने कमेंट्स किए थे कि देयर इज अ चांस ऑफ द प्राइजेस ऑफ प्रॉपर्टी फॉलिंग, प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी कमिंग डाउन, एंड वन ऑफ दैट रीजंस उन्होंने अभी सब पॉज करके रखा है टू बाइंग अ प्रॉपर्टी। आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू सर, उनके लिए आपका क्या एडवाइस होगा कि जब वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं उन्होंने क्या देखना चाहिए, एंड व्हाट इज द राइट टाइम फॉर देम सर? आई विल टेल यू चिंतन, एज अ बिल्डर अगर मैं कुछ भी सच्ची एडवाइस इस पॉइंट पे दूंगा ना, लोग पीपल विल थिंक दैट आई एम टॉकिंग मार्केटिंग। आज बिल्डर इतना ब्लीड कर गया है क्योंकि कॉरपोरेशन को प्रीमियम मैक्सिमम चाहिए। कॉस्ट ऑफ नीदर सीमेंट नीदर जीएसटी हैज कम डाउन,
nor building materials have come down. ये जो कॉस्ट है ना, देयर इज हार्डली एनी गैप फॉर अ बिल्डर. एक बैंकर का बोलना बहुत इजी है, 20% कम करो, पर जिस दिन तुम बैंकर को बोले ना कि 20% तुम हेयरकट लो, उस वक्त वो लेने को तैयार है? सबका नहीं. टिप्पणी देना, बात करना, बोलना बहुत इजी है मंच से कि बिल्डर शुड रिड्यूस, और वो बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं. कहाँ से कम करे कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं बता रहा. आज इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू एक्सपेक्ट कि बहुत कुछ प्राइस कम होगा, पर एक क्लॉज आप डाल सकते हो व्हेन यू आर नेगोशिएटिंग विद द डेवलपर. हम डेवलपर्स ने लास्ट 6 महीने में बड़े बड़े गवर्नमेंट्स को, एफएम को बहुत बोला, रिवाइव करो, रिवाइव करो, रिवाइव करो. क्लाइंट का सेंटिमेंट, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया. न स्टेट गवर्नमेंट कुछ करने को तैयार है, न सेंट्रल गवर्नमेंट करने को तैयार है. और देखना, ये घरों की नीड जो है ना, अभी ये बबल ये बस्ट होगी. लोग धारावी में रह रहे के फेडअप हो गए, लोग चॉल्स में रह रहे के फेडअप हो गए, और लोग ये पेंडेमिक में अपने परिवारों को नहीं रहने देंगे. एवरीबडी जो जिसके पास थोड़ा भी पैसा है, आज वो सोचेगा मैं गाड़ी नहीं लूँ, मुझे अपने घर के लिए एक हवादार घर चाहिए, मुझे प्रैक्टिकल घर चाहिए जहाँ मेरा परिवार हेल्दी रहे. मेरी आपको रिक्वेस्ट सबको है जो सुन रहे हैं, जो बैंकर है, कि आपका क्वेश्चन प्राइस का, इतना गैप, कुछ गैप नहीं है, बजट नहीं है प्राइस कम होने का. आप एक बिल्डर से नेगोशिएशन कर सकते हो कि आज ये प्राइस है तुम्हारा आज का प्रीमियम्स के हिसाब से. अगर गवर्नमेंट ने प्रीमियम कम किया, आप हमारे को एक्सेल शीट पे वर्किंग दिखाएंगे पोजीशन से पहले कि प्रीमियम कम हुआ, एंड यू आर पेइंग लेस प्रीमियम टू द गवर्नमेंट, वो हमको आप रीइंबर्स करके दोगे. सी व्हाट इज हैपनिंग. कोई बैंकर हेयरकट लेने को तैयार नहीं है, खाली बात करने को तैयार है. बात करना और काम करने में बहुत फर्क है. हमारी रिक्वेस्ट है, डिफरेंट ब्रीड ऑफ लोगों को डिफरेंट. आज आपका क्वेश्चन इज क्लियर, मैं आगे फेज में नहीं जा रहा हूँ. ओनली फॉर फ्लैट बायर्स. आप सबसे पहले 2-5% प्राइस को मत देखो बड़े भाई. आपको अच्छे लोकेशन पे, कन्वीनियंट लोकेशन पे, अपने माँ बाप की हेल्थ, अपने बच्चों की हेल्थ, अपने परिवार की हेल्थ. और ये पेंडेमिक्स, ये तो कुदरत ने हमको एक लेसन सिखाया है कि ट्राई टू लीड अ हेल्दी लाइफ. पहले हम कहीं भी रहे हुए थे, कुछ भी खा रहे थे, क्या कर रहे थे. गवर्नमेंट ने अभी भी अगर SRAs को डेवलप नहीं किया और ये स्लम लॉर्ड और पॉलिटिकल कनेक्शन कट नहीं किया, जो जूने परमिशंस दिए हुए, अगर कोई SRA में से सुन रहा है इसको, प्लीज़ मेहरबानी करो, दया करो उन SRA वालों पे जो स्लम लॉर्ड्स को परमिशन दी, उनको बोलो महीने में काम चालू करो, नहीं तो वी आर कैंसिलिंग योर परमिशंस. टेंडर फ्लोट करो, नए लोगों को दो प्लीज. बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ओल्ड रॉटन पॉलिसीज, डोंट मेक अ मेस ऑफ दोज पीपल लिविंग इन द स्लम्स. डोंट हैव लिप सिंपैथी कि इलेक्शन के टाइम पे आप चले जाओ कि हम FSI बढ़ा देंगे, आपका रूम का साइज बढ़ा देंगे. अरे रूम का साइज उस बेचारे को नहीं चाहिए, उसको घर टाइम पे चाहिए, उसको हवादार घर चाहिए. ये my request to people in different segments, please be human centric. Think about the public first, think about the slum first, think about the people living below poverty line first. Make healthy houses. They don't want marble, they don't want swimming pools, they want हवादार घर. आज हमारी, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ because I'm not supposed to say that, we try to work in a very practical way. हम 300 फुट वाले को भी क्रॉस वेंटिलेशन सोचते हैं. आज मैंने देखा है कई बिल्डिंगें, मैं नाम बोलूँगा तो आप लोग समझ जाओगे, मलाड में, कांदेवली में बन रही हैं 60 माले के स्लम्स. किचन को लाइट चौक के थ्रू, बाथरूम्स को लाइट चौक के थ्रू. अरे यार, और ब्रोकर्स आते हैं मेरे पास, बोलते हैं टिकट साइज कम करो. अरे मैंने कहा रहने वाला मर जाएगा, उसको हवा नहीं रहेगी, वो बेचारी लेडी किचन में काम नहीं कर सकेगी. बाथरूम्स के अंदर आपके जर्म्स होंगे. जिनको 60 माले का इंटरनल चौक से हो, will that 60% vertical slum maintain that vertical exhaust? Not at all. ना हवा जाएगी, ना लाइट जाएगी. क्या बोलने का यार, I can't understand. आर्किटेक्ट्स को प्लीज, इफ यू ऑल आर पढ़े हो, आपको कुछ वाउच किया होगा आपने पढ़ने के टाइम पे कि हम हेल्दी लिविंग बनाएंगे. डोंट मेक बिल्डिंग्स फॉर एलिवेशन और टू प्लीज योर कस्टमर.
you please, you're not builder customer, but the ultimate client who is going to live there, उसको भी आप टिकट साइज अच्छी बना के दो. पर डोंट मेक, अब मैंने जेम्स नहीं जैसे बात किया, हांगकांग के अंदर ही हैड प्लान फॉर वन ऑफ आवर बिल्डिंग किचन इनसाइड अ चोक. अरे यार, इनसाइड अ चोक हवा कहाँ से आएगी, वो लेडी काम कैसे करेगी, डिप्रेशन में रहेगी. मैंने कहा नहीं जेम्स, वो प्रैक्टिकल चीज़ें बम्बई में नहीं चलेंगी बेटा. यू हैव टू मेक थिंग्स आवर गाउटी थिंग्स. आज हम चाइनीज़ यहाँ नहीं बनाते, हम इंडियन चाइनीज़ बनाते हैं. वी लव दैट टाइप. So unless all of us change our thought process, keeping our client in mind, client has to get delivery on time. क्लाइंट को डिलीवरी मिले. और ये जो जितनी जूनी बिल्डिंग है बंद पड़ी हुई हैं, मेहरबानी करिए, जिन NBFCs ने, बैंक्स ने उनको मॉर्गेज किया है, कम ऑन यार, डोंट लीव बैंक बैलेंस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फंड दोज प्रोजेक्ट्स, कंप्लीट इट, सेफगार्ड योरसेल्फ. नो बिल्डर शुड फूल यू, नोबडी शुड साइफन आउट योर मनी, बट एटलीस्ट सी दैट कॉन्फिडेंस इन द मार्केट. आज ये जितना वर्ली प्रभा देवी चले जाओ या बिल्डिंगें बंद पड़ी हैं, मैं सब फंड वालों को बोलता हूँ मेहरबानी करो यार, इनको ख़त्म करो. ये क्या आदमी जाता है ना तो सब बिल्डरों को चोर समझता है. आज देर आर बिल्डर्स जिनने गलत भी की है, पर देर आर पीपल, रिस्पेक्टेबल पीपल, जिनने बैलेंस शीट्स को लॉस करके भी प्रोजेक्ट्स को टाइम पे पूरा किया है. होमवर्क करो यार, आप अपनी लाइफ की सेविंग लगा रहे हो, इतना तो होमवर्क कर सकते हो कि इस बिल्डर ने लास्ट 20 साल में, 50 साल में बिल्डिंगें सब पूरी की हैं या इनकम्प्लीट की हैं. आप लोग भी, परचेजर भी लोभ में जाते हैं, दलाल दलाली के लोभ में जाता है, गाड़ी के लोभ में जाता है, ब्रोकरेज के लोभ में जाता है, और परचेजर सस्ते के लोभ में जाता है, तो सब अटक जाते हैं. जी. Yes, sir. I think is your question replied properly? Sir, I had like 4 questions. Your answer actually covered all my 4 questions of what it is. No, sir. This is what we wanted, sir. Thank you so much. We'll directly go to what it may be, sir. This last segment of our talk show. Sir, what do you think future में as a developer, addressing to the developers, हम लोग को क्या-क्या चीजों पे और ध्यान देने की जरूरत है, सर? एक बात बोलूं चिंतन, जो डेवलपर्स को धुलना था ना, वो 90% धुल गए. ब्रोकर्स भी समझ गए कि इल्यूजनरी डेवलपर कौन है, बोल बच्चन कौन है, बात कौन करता है, शो कौन करता है और काम कौन करता है. अभी भी अगर नहीं समझे तो भैया भगवान भी उनको नहीं समझा सकता. वे फॉरवर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग. जेन्युइन जो विजनरी क्लाइंट सेंट्रिक डेवलपर होगा, जो क्लाइंट को मद्देनज़र रख के बनाएगा और जो डिलीवरी पे पूरा फोकस करेगा, हेल्दी बिल्डिंग्स बनाएगा. ब्रोशर में उनको, प्लीज़ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दिस बॉलीवुड पीपल, आप 2-2 करोड़ ब्रोशर पे खर्चा मत करो इन एंकर्स को लाने के लिए. प्रोडक्ट पे ध्यान दो. आज मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, हमारे अफोर्डेबल भी प्रोजेक्ट्स हैं. अफोर्डेबल को भी वेंटिलेशन इतना अच्छा दो कि 1 बेडरूम हॉल को भी क्रॉस वेंटिलेशन हो, 2 बेडरूम को भी हो. अब मैं नाम नहीं लूँगा अपने प्रोजेक्ट्स का. काम चालू होने से पहले हमारे 150-200 फ्लैट बिफोर बुकिंग बिकते हैं. और ये पेंडेमिक में लोगों ने फर्दर इंस्टॉलमेंट्स भी दिया, क्योंकि जो फंड वाले हैं ना, वो हमेशा डाउट करते हैं कि कैंसिलेशन तो नहीं हो गई. जिन लोगों ने पहले दिया, हमने इनिशियली उनसे 2-4% लिया, और ये पेंडेमिक ने कईयों ने हमको 10% दिया. तो बैंक्स आर गेटिंग कॉन्फिडेंस कि राइट डेवलपर को फंड करो, सपोर्ट करो. तो अभी क्या हो रहा है, बैंकें हमको बुला रही हैं, NBFCs हमको बुला रही हैं कि हाउ टू कम आउट. मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का. टुडे आवर रेपुटेशन इज, वी सी द एंड ऑफ द टनल. वी डोंट प्ले ब्लाइंड कि इसकी FSI आ जाएगी, इसकी FSI आ जाएगी. हमारा दादर में एक काम चल रहा है, हम 60 माले की बिल्डिंग बना सकते थे, पर नवीन ने बोला कि 60 माले की बनाने में मेरे को 8 साल जाएगा, 20 माला कम बनाओ, 38 फ्लोर बनाओ, 3 साल में निकलो. क्योंकि वो 2 साल ग्राहक भी अटका, बैंकर भी अटका, ब्याज भी अटका, सब मरे. ये जो FSI चढ़ाने की ग्रीड है ना बिल्डर्स को. और आर्किटेक्ट साहब प्लीज़, आज कंसेशन इन प्रीमियम्स एंड डेफिशिएंसी इन प्रीमियम्स, और मैं बहुत अच्छा रास्ता बताऊँ, हम बिल्डिंग का टाइम बहुत बचा देते हैं, वो हमारा USP है. मैं चाहूँगा कि मैं सब यंग आर्किटेक्ट्स को बताऊँ, हम बिल्डिंग्स के नीचे हमने पहले बहुत ज़िंदगी लाइफ वेस्ट कर दी बेसमेंट्स बनाने में.
अरे साला 2 साल तो चला जाता है बेसमेंट खोदने में, इंस्टॉलमेंट ही नहीं आती है, इसी बीच में बिल्डर सिक हो जाता है। जो कार पार्किंग है ना बेटे, आप सब लोग बिल्डिंग से बाहर निकाल दो, उसको सेपरेट स्ट्रक्चर कर दो और वो बाद में बनाना जब बिल्डर के पास कैश फ्लो आवे। डोंट कंसीव कार पार्किंग बिलो द फुटप्रिंट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग ऐसा प्लान करो जिससे कि आपने फाउंडेशन किया और फर्स्ट स्लैब की ग्राहक को इंस्टॉलमेंट आनी चाहिए। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दूं। हमारा एक मुलुंड में प्रोजेक्ट था, हम ये तरीके से किए, फ्लैट परचेजर्स ने सोचा नहीं कि हम इतना फास्ट काम करेंगे। दे थॉट दूसरे बिल्डर हैं, पहले वाले का स्लैब डलने में 2 साल लगेगा, उनको 3 महीने में चिट्ठी चली गई। वहाँ के फ्लैट परचेजर आए कि आप लोग पैसा बहुत फास्ट मांग रहे हो। मैंने कहा भैया, कहीं बिल्डर बिल्डिंग नहीं बना रहा है, तुम वहाँ बोलते हो बिल्डिंग बंद है। अब यहाँ बिल्डर ईमानदारी से बनाने के बाद तुम्हारे पास आ रहा है, कहते हैं वी अप्रिशिएट, पर हमारे को कैश फ्लो हमने इतना सोचा नहीं था। तो मैंने नवीन को बोला, ऐसे जो 2-4 क्लाइंट्स हैं उनको संभाल यार, सी वी हैव टू अंडरस्टैंड ये क्या, इट इज़ ऑल थॉट प्रोसेस ऑन मेथोडोलॉजी ऑन। अब आप बोलो टेक्निक, ये टेक्निक क्या है, इट इज़ जस्ट फाइन ट्यूनिंग। चिंतन भाई, अगर मंदी है और आपको एसी का बिल नहीं पे कर सकती हो तो क्रॉस वेंटिलेशन वाली ऑफिस में बैठो, आपको फ्रेश एयर आएगा। तो यू प्लान ऑन ऑल दोज थिंग्स, यू नो, इट इज़ बेसिकली द इंटेलिजेंस वे अहेड। आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। जो बिल्डर आजकल जो सबसे बड़ा गेम खेल रहे हैं, 1% एंड 99 ऑन पोजेशन, बिलीव यू मी, बहुत डेंजरस है, फंसाने की बात है। वो आपका डॉक्यूमेंट दिखा के बैंक को पैसा ले लेगा और मार्केट अगर 1-2%, 5% भी गिरा, आप बोलोगे मेरा 1% रख लो, वो बिल्डिंग अटकेगी। मेहरबानी करो, डोंट ट्राई टू कम इनटू दोज स्कीम्स ऑफ 1%, 5%, 2%, 99%। वो खाली लिमिटेड कंपनियां कर रही हैं अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखाने के लिए कि हमने 500 फ्लैट बेचे, 1000 फ्लैट बेचे। नो प्रोजेक्ट विल मेक मनी इफ़ अ बिल्डर इज सेलिंग। हमारा आज तक जो काम चल रहा है अभी लास्ट 5-7 साल से, कंस्ट्रक्शन लिंक्ड, कंस्ट्रक्शन का प्रोग्रेस होवे तो आप पैसा भरो, तो क्लाइंट भी खुश होता है। अगर किसी वजह से परमिशन में 1-2 दिन डिले होती है तो उसको भी हम समझाते हैं कि परमिशन की वजह से डिले, और कोई बात नहीं है। वे फॉरवर्ड फंडामेंटली योर परफॉर्मेंस, योर प्लानिंग, योर एग्जीक्यूशन। और मैं आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स को एक जगह रिस्पॉन्सिबल काम बोलना चाहूँगा ये फोरम से, कि जब आप लोग बड़े प्रोजेक्ट करते हो, see the water table, see the sea table. Today sea is rising few millimeters every day. जब heavy rainfall आता है, मीठी रिवर, various rivers को hit होता है sea water. जो भी construction उसके बाजू में होता है, it's submerged. You all should guide your developer, and your developer should have passion कि मेरे को हवादार बिल्डिंग बनानी है और बिल्डर क्लाइंट्स के लिए सेफ बिल्डिंग बनानी है। अगर आपको 6-8 फुट फिलिंग करनी पड़े तो प्लीज़ करो, पेनी वाइज मत करो, कुछ नहीं है ये 2-4 करोड़ का खर्चा। पर ज़िंदगी भर जो लोग उस बिल्डिंग में रहेंगे, दे शुड फील कंफर्टेबल। आज क्या, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस आर चेंजिंग एवरी डे, सी वाटर इज हिटिंग इनसाइड द रिवर्स, रिवर लेवल्स आर गोइंग अप, सो वी हैव टू प्रोक्योर एंड सिक्योर आवर प्रोजेक्ट्स फॉर द क्लाइंट्स। हमने एक टाउनशिप का प्रोजेक्ट लिया, हमने हांगकांग से रिसर्च कराया था उसका, अंडर वाटर क्या है, सी लेवल क्या है, विंड डायरेक्शन क्या है, रेन कहाँ से आता है। हमने कई बिल्डरों का देखा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आर्किटेक्ट्स, बॉम्बे को हवा आती है साउथ वेस्ट से, साउथ वेस्ट पे वो लोग ब्लाइंड वॉल डाल देते हैं, स्टेयरकेस डाल देते हैं और सर्वेंट्स टॉयलेट डाल देते हैं, किचन डाल देते हैं। क्या कर रहे हो यार, कम से कम डायरेक्शन तो देखो बिफोर यू सेट द बिल्डिंग, so that at least there is good air, fresh air and sun path. We study sun path for all our projects, you know. हर आज विटामिन डी की शॉर्टेज है, we builders are responsible. We have to give healthy homes. Are we thinking कि खाली हम बोल देते हैं प्लान, फ्लोर प्लान देख लो, माल बेच दो, ले लो, आदमी को सन आएगा नहीं आएगा, विंडो से आएगा या विंडो, और विंडो के आगे फिन निकालते हैं। Hey, why you are spending money and loading the structure, architects? Don't make the fin. Forget the bloody elevation, yeah. Try, let the sunlight come. Let the customer see the view. Let him feel with the nature. Don't give drop pardis on the chajjas. A when person lying on the bed should see the moon, the sky. He should feel. Otherwise, people are under depression.
घर बंद करके बैठे हैं क्योंकि हवा नहीं है। अरे वैसे ही डेवलपमेंट कंजेस्टेड है, बाजू की बिल्डिंग है, तो ट्राई टू मेक गुड क्रॉस वेंटिलेटेड हाउसेज, किचन शुड बी गुड, टॉयलेट शुड बी गुड। इफ यू वांट प्लीज बी इन टच, माय ऑफिस विल हेल्प यू ऑल, गाइड यू ऑल। चिंतन को आप मेल भेजिए, आप अपने प्लान्स भेजिए, आई विल रिक्वेस्ट माय आर्किटेक्ट टू डू ऑनररी सर्विस टू यू, नो हार्म। आप लोग करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से। Try to see that you prepare good building plans यार, planning is the fundamental। प्लान हेल्दी होगा, ब्रोकर को बेचने में मजा आएगा, क्लाइंट को रहने में मजा आएगा, और अगर माल फास्ट बिका, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एग्जिट फास्ट मिलेगा। सो इट इज विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। डोंट फॉरगेट द फंडामेंटल थिंग्स, यू नो। एनीथिंग एल्स आई कैन? Sir, we'll take a live question. It says, do you think there should be compulsory funding responsibility on government for the building projects pan India level? एक बात बोलूं भाई साहब, गवर्नमेंट से वो मांगो जो वो देवे। हमने लास्ट पेंडेमिक में दे दिया माइग्रेंट्स को, उनको गांव में पहुंचाने के लिए दाल है, चावल है। आज आप जितने हम सुन रहे हैं, हम लोग टैक्स पे करते हैं, किसी के घर में चावल की गुनी आई है? मैं पूछ रहा हूँ, मतलब वी आर नॉट इन द लिस्ट। हमको अपना भाग्य खुद बनाना है। हमारे आज गवर्नमेंट आपको एक बहुत अच्छा स्वामी फंड निकाला है। अगर आपके प्रोजेक्ट में फंड है, दम है, तो आपको वो स्वामी फंड हेल्प करेगा, जिससे कि योर इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स मस्ट बी कंप्लीटेड। सी, डोंट एक्सपेक्ट अनरियलिस्टिक थिंग्स फ्रॉम गवर्नमेंट। एक्सपेक्ट वो करो जो वो दे सके। आज किस किस को देंगे? हर इंडस्ट्री वाला मांग रहा है, सब मांग रहा है। अपना हाथ जगन्नाथ भाई साहब, ठक्कर साहब, जिसने भी ये, दीपक भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मांगो वो जो मिले। भगवान से भी वो मांगो जो दे सके। आप इसीलिए वो चीज़ मांगो, सपनों में मत जियो। बिल्कुल बिल्कुल, बी प्रैक्टिकल। जो अच्छी, अपने हाथ पे बिलीव करो ना, अपने परफॉर्मेंस पे बिलीव करो ना। अभी हम लोगों ने काम चालू करने से पहले जो बिकॉज ऑफ प्लानिंग एंड ट्रैक रिकॉर्ड, आदमी बोलता है मंदी है, मैं बोलता हूँ जेन्युइन आदमी के लिए राइट टाइम है। जेन्युइन आदमी के लिए ये राइट टाइम है। हमारी ऑफिस बिजी लगी हुई है डील्स नेगोशिएशंस में, सब आ रहे हैं स्ट्रेस में। हम देखते हैं बाबा किससे दूर रहो, किसने छुपाया होगा। जिस बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड कनिंग है, लिटिगेशंस हैं या रेरा में, उनसे दूर रहो, उनसे छुट्टे हो जाओ। सी, अपने बिलीव करो, जो काम कर सको। छोटे आप लोग, कोई बोरीवली में काम कर रहा है, कोई कहाँ काम कर रहा है, बिल्डिंग अच्छी बनाओगे तो यश मिलेगा, ग्राहक का ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ब्लेसिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन योर एक्सेल शीट्स यार। आर्किटेक्ट्स, बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं, प्लीज़ अच्छी बिल्डिंग कंसीव करिए। अभी क्या है, कुछ आर्किटेक्ट्स को भी ग्रीड हो गई, वो आर्किटेक्ट ने अपने बेटे को बिल्डर बना दिया। अरे यार, तो अपने बेटे को अपने काम में रख, तू बिल्डर कहाँ बना रहा है यार, उसमें छोड़ दे। अपने कामों पे ध्यान दीजिए, अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए। आप डोंट डिपेंड कि कोई मेरी और नैया आके पार करेगा, कोई नैया ना पार करेगा। अपनी नैया खुद पार करो, प्लान अच्छे बनाओ और हुक्म करो चिंतन। देखो, 3 चीजें आपकी वे फॉरवर्ड, फंडामेंटल, हेल्दी प्लानिंग। आज आप बोलते हो कोविड की दवाई, हमारी सब बिल्डिंगें कोविड प्रूफ हैं, मतलब इम्यूनिटी प्रूफ। मतलब आप फ्रेश एयर में सोओगे, आपको प्राणायाम करोगे। अगर आप स्लम में रहे हुए हो और आप अगर बच्चों को वहीं पालना चाहते हो, इट्स योर बैड लक। प्लीज डोंट वेट फॉर प्राइजेस जो डिप्रिशिएट होनी थी हो गई। अगर 2-4% हो भी गई, आपको जो अच्छे बिल्डरों की चीज़ें मिल रही हैं, पर प्लानिंग पे ध्यान दो, डिलीवरी पे ध्यान दो, ट्रैक रिकॉर्ड पे ध्यान दो। जिसने टाइम पे काम पूरे किए हैं, यू विल नॉट बी अ लूजर। जिसने काम टाइम पे नहीं किए हैं, मेहरबानी करे, वो गुड़ भी लगावे ना, 25% लेस भी देवे, मत अटको, क्योंकि लाइफ इज गोइंग बिहाइंड दैट यार। आज कोई आदमी घर ढूंढते निकलता है, पूरा परिवार साल 2 साल घर ढूंढता है और कहीं गलत सी ग्रीड से अटकेगा। परचेजर भी आज ग्रीड से अटकेगा। परचेजर को ग्रीड नहीं करना चाहिए। आप अपनी बैंकों को बोलो कि आप गारंटी स्कीम में आ जाओ। बहुत बिल्डर जो सुन रहे हैं, प्लीज़ आप अपनी बैंकों को बोलिए, SBI को बोलिए, HDFC को। अभी HDFC को भी करना पड़ेगा, ICICI को भी करना। इंस्टेड ऑफ बीइंग एट द मर्सी ऑफ द डेवलपर, they should take over the title deeds of the property, so that in case of any contingency they complete the project and they recover their monies. Right. And जैसे सर ने बताया, if you have any questions for the Vadhva group or for Vijay sir, you can write to us at connect@wisebiz.in and we'll get everything ready और सर के पास हम लोग दे देंगे। और सर ने कल प्रॉमिस किया है कि he will invest 2 or 3 hours for me once the questions are ready, and sir will try to reply each one of you.
Sir, your final parting words. Yes, sir. In short, a purchaser has to be practical. Don't be greedy. A broker has to be very practical. दलाली के लालच में बकरे को किसी कब्र मत ले जाओ कत्ल कराने. Banker has to see the track record. बैंकर ने कहीं भी गलत दिया है, दे आर फीलिंग, पर बोल नहीं सक रहे हैं. जिन बैंक्स के एचओडीज ने आप लोगों ने दे शुड एक्सेप्ट कि यार इस प्रोजेक्ट को दे के गलती हो गई, अभी जो भी है जितना जल्दी यू टर्न कर लो उतना बेटर है. प्रोजेक्ट मस्ट गो ऑन बिफोर इट इज. जी, Perfect. Sir, your final parting words for say bankers, for real estate developers and the consumers. For bankers. मैंने लास्ट बैंकर को जो गलतियां हो गई हैं प्लीज उसको आप रेक्टिफाई करिए, जितना शॉर्ट टाइम में करेंगे. एम शुड बी रिकवरी फुल लेस थ्रू अ राइट. अगर आपको वो डेवलपर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, अरे भाई आपके बैंक में कोई तो रिस्पेक्टेबल डेवलपर होंगे. देयर आर सो मेनी रिस्पेक्टेबल डेवलपर्स इन एमसीएचआई. यार मैं किसी का नाम लेना ठीक नहीं समझता, क्योंकि इट इज, आप उनसे बात करिए कि आप प्रोजेक्ट का चार्ज ले लो, प्रोजेक्ट पूरा कर दो. अगर उसमें थोड़ा बहुत आपको लगे कि लास्ट में कुछ हेयरकट भी होता है ले लेना, पर प्रोजेक्ट कंप्लीट कराओ. अपने क्लाइंट को पीस ऑफ माइंड दो. आपको जो होम लोन्स दिए हैं, नहीं तो ये लिटिगेशन में कब तक. अभी ये जैसे पीएमसी बैंक और एचडीआईएल, अरे यार दोस्त क्लाइंट शुड से भाई हम फंस गए गलत आदमी से, टेक ओवर थ्रू रेरा दोस्त प्रोजेक्ट्स, खुद का पैसा डाल दो, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दो. रेरा को बोलो भाई कॉन्ट्रैक्टर दिला दो हमको, परमिशन प्रीमियम्स के लिए वो कंसेशन रेरा आपको कुछ रिकमेंड कर देगा. But don't be in congested areas. Don't live in unhealthy environment. This COVID will otherwise kill you all. ये कोरोना रुकने वाला नहीं है. आप इसी घर में बैठे हुए हो विदाउट वेंटिलेशन, विदाउट कुछ. ट्राई टू कम आउट ऑफ इट. अगर कहीं अच्छी चीज़ मिलती है तो ले लीजिए, अच्छी चीज़ ली हुई है तो उसको जल्दी पूरा करवा दीजिए, जिससे कि योर फैमिलीज कैन लिव इन अ हेल्दी हाउस. और थर्ड क्या था आपका, बैंकर का भी हो गया, क्लाइंट का और ब्रोकर्स आपको भी मैंने बोल दिया कि आप प्लीज़ मेहरबानी करो, अभी खाली पैसे के लिए नहीं, अपनी इज्जत बचाओ. आपने जो आज इतने साल काम किया है, आप ग्राहकों को दुआ दिलाओ. हमारे कांदिवली ईस्ट के प्रोजेक्ट के लिए कुछ 1000 ब्रोकर आए थे, हम लोगों ने वहाँ पे 200 फ्लैट बेचे हैं बिफोर स्टार्टिंग. आदमी कहते हैं मंदी है, काहे की मंदी है यार, कोई मंदी नहीं है. राइट आदमी के लिए कोई मंदी नहीं है. आप लोग राइट बिल्डरों का माल बिकवाइए, जो काम करते हो उसमें आपको भी इज्जत मिलेगी. Right. The track record always helps. Sir, thank you so much for coming on board. One last request from my digital team. जो भी सर हमारे गेस्ट आते हैं ना, we always ask them to say कि hi, I'm Vijay Wadhwa. It's an e-talk show and not a Zoom call. I would want you to say that tagline of ours. It says, hi, I'm Vijay Wadhwa. It's an e-talk show and not a Zoom call. यार मैं सेल्फ पब्लिसिटी के फेवर में नहीं हूँ. आई एम अ वर्कर. मैं जो हूँ सो हूँ. मैं काम करने में बिलीव करता हूँ. पर आप पूछ रहे हो तो आई एम विजय वाधवा. आई हैव बीन वर्किंग एज अ वर्कर एंड अल्टीमेटली परफॉर्मेंस इज माय लक्ष्य. परफॉर्म होगा तो अपना नाम रहेगा, परफॉर्मेंस नहीं रहेगा तो हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, हम फोन्स अवॉइड करेंगे, कॉल्स अवॉइड करेंगे, आदमियों को अवॉइड करेंगे. क्या रिस्पेक्ट है यार उस चीज़ से. इज्जत कमाओ, अच्छी तरीके से कमाओ. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू. Thank you so much, sir, for coming on board for this particular e-talk show, and thank you for giving so much of your time. Thank you, sir. Love Thank you. everybody. Bye. That was Mr. Vijay Wadhwa from Wadhwa Developers. If you have any questions for him, or if you have any suggestions for WiseBiz Realty, we would request everyone to please write to us on connect@wisebiz.in. I hope you liked today's episode. We will be back again next weekend with a new guest, and I have to specially thank architect Tarun Mota sir, who has helped me get Vijay Wadhwa ji on board. On behalf of WiseBiz Realty, on behalf of my partner advocate Deepak Thakkar, and everyone at WiseBiz Realty, I would want to thank each and every one of you who joined us today. Thank you to the Wadhwa group and everyone who helped me coordinate and to bring this thing ahead. Please share this video with maximum people and do write to us to give any of your suggestions. Thank you so much everyone, and yeah, special thanks to James Law for sending that particular message, to the Save family for giving that particular video. Thank you so much, and hope you have a great Sunday, and please share this particular video. Thank you.